سزائے موت سنائی گئی۔ افسر کی واحد امید اس کا وفادار پولیس کے نائن کتا تھا۔ جب افسر مائک گریسن کی قسمت ایک ایسے جرم میں مہر بند ہو گئی جو اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی واحد زندگی کی لکیر ایک پولیس کے نائن کتا تھا جو جھوٹ میں ڈوبے ہوئے دنیا میں سچائی کو سونگھ سکتا تھا۔ اپنے مالک کو بچانے کے لیے اس کے پاس وقت کم تھا۔ جیل کی سلاخیں اس کے پیچھے بند ہو گئیں۔ افسر مائک گریسن ساکت کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ بند ماٹیاں تھیں۔ اس کی وردی غائب تھی۔ اس کا بیج، اس کی انصاف کی علامت چھین لی گئی تھی۔ اب اس نے نارنجی رنگ کا جیل کا لباس پہنا تھا۔ اسے ایک مجرم کہا جاتا تھا۔ عدالت اس کے ذہن میں تھی۔ جج بولا۔ اس کی آواز سرد تھی۔ جیوری نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مجرم۔ ایک لفظ نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ 10 سالوں سے مائک ایک اچھا افسر رہا تھا۔ اس نے زندگیاں بچائیں۔ اس نے جرم روکا۔ اس نے شہر میں بہترین پولیس کتوں کو تربیت دی۔ لیکن اب ان میں سے کوئی بھی چیز اہم نہیں تھی۔ اس کا باس، کیپٹن ہیرس، مر چکا تھا۔ ثبوت مائک کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کے نشان ایک بندوق پر تھے۔ ایک ویڈیو میں اس کے قد کا ایک آدمی دوڑ جاتا ہوا دکھایا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے پاس ایک وجہ تھی، ناراضگی، کیونکہ وہ ترقی ہار گیا تھا۔ لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ اس رات مائک گھر پر تھا۔ وہ اپنے کے نائن پارٹنر تھور کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جائے وقوع پر نہیں تھا۔ لیکن اب وہ ایک ایسے جرم کی پاداش میں مرنے کے لیے بند تھا جو اس نے نہیں کیا۔ اصل قاتل۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ عدالت میں دیکھ رہا تھا۔ چیف ڈینیل ریوز نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے۔ اس کے پاس طاقت تھی۔ اس کے پاس راز تھے۔ اس کے ہاتھ گندے تھے۔ مائک نے کچھ برا دیکھا تھا۔ پولیس افسران منشیات کے ڈیلروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو بتا پاتا، ہیرس مر چکا تھا۔ ثبوت مائک پر لگا دیے گئے۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے گہرائی میں نہیں دیکھا۔ کوئی ریوز کے خلاف نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن ہر کسی نے اس جھوٹ پر یقین نہیں کیا۔ مائک، میں نہیں رکوں گا، رے کارٹر نے جیل کے ملاقاتی کمرے میں کہا۔ وہ مائک کا پرانا پارٹنر تھا۔ رے ایک اور ٹیم میں منتقل ہونے سے پہلے وہ ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ کیس بہت کامل ہے۔ اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ مائک نے آہ بھری۔ اس نے اپنا چہرہ رگڑا۔ رے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ رے قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ تھور کچھ جانتا ہے؟ جب سے تمہیں لے جایا گیا ہے وہ ویسا نہیں رہا۔ جب ریوز اور دوسرے اس کے قریب آتے ہیں تو وہ غراتا ہے۔ وہ کتا جھوٹ سونگھ سکتا ہے۔ مائک کا دل دکھا۔ تھور ایک پارٹنر سے زیادہ تھا۔ وہ خاندان تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر تنہا اور الجھا ہوا مائک کو اور بھی برا لگا۔ انہوں نے اسے نیا ہینڈلر دینے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سنتا، رے نے کہا۔ وہ احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ وہ پوری رات اپنے پنجرے میں چلتا رہتا ہے۔ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مائک نے مشکل سے نگلا۔ مجھے اسے دیکھنا ہے، رے۔ آخری بار۔ رے کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں ایسا کروں گا۔ تھور کے 9 یونٹ میں اپنے پنجرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سنہری بال کھڑے تھے۔ ہر بار جب کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو اس کے کان ہلتے۔ جب غلط لوگ قریب آتے تو وہ غرتا۔ انہوں نے مائک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے افسران نے اس کا نام پکارا۔ انہوں نے اسے پیٹوا باندھنے کی کوشش کی۔ لیکن تھور نہیں ہلا۔ اس کی وفاداری صرف ایک شخص کے لیے تھی۔ اس نے برے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس نے ان کے خوف کو سونگھا تھا۔ اس نے ان کے جرم کو محسوس کیا تھا۔ وہ انسانی الفاظ نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ ان کے جھوٹ کو سمجھتا تھا۔ ہر رات وہ لیٹ جاتا تھا۔ وہ اپنی ناک کو ٹھنڈی دھاتی سلاخوں پر رکھتا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور انتظار کیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مائک واپس کیوں نہیں آ رہا تھا۔
लेकिन कुछ गलत था। फिजा उदासी से महक रही थी, आवाजें खामोश थीं, कुछ गायब था, और थोर उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो उसे तलाश न कर ले। दिन गुजरते गए। ठंडी जेल के अंदर माइक अपने सख्त बिस्तर पर लेटा था। वो छत को घूरता रहा। इसकी सजाए मौत की तारीख मुकर्रर थी। उसने दूसरे कैदियों की सरगोशियां सुनी। वक्त उसके कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डरा हुआ था, इसलिए कि वो गुस्से में था। उसने अपनी जिंदगी मुजरिमों को पकड़ने में गुजारी। अब वो एक मुजरिम के तौर पर मर रहा था। इसके सेल के दरवाजे पर दस्तक ने उसे उठने पर मजबूर किया। एक गार्ड वहां खड़ा था। इसके बाजू मुड़े हुए थे। उसने दुखी आंखों से माइक को देखा। तुम्हारी कोई दरख्वास्त है? गार्ड ने पूछा। माइक ने उसे देखा। वो एक मुस्तकिल आवाज में बोला, मैं अपने कुत्ते को देखना चाहता हूं, बस एक बार मरने से पहले। गार्ड का चेहरा नरम पड़ गया। मरने वाले शख्स को भी आखिरी ख्वाहिश की इजाजत थी। मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, इसने कहा। भारी जेल का दरवाज़ा जोरदार आवाज के साथ खुला। आवाज तारीक राहदारी में गूंज गई। 2 गार्ड अंदर दाखिल हुए। उनके जूतों ने सख्त फर्श पर गहरी धमकी दे। माइक अपने बिस्तर पर बैठा था। इसके हाथ इसके घुटनों पर रखे हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। एक गार्ड बोला, 5 मिनट। कोई मसला नहीं। माइक ने सर हिलाया। इसका चेहरा पुरसुकून था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल दौड़ रहा था। फिर खिले दरवाजे से थोर जाहिर हुआ। बड़ा कुत्ता तनाव का शिकार था। उसके सुनहरी बाल खड़े थे। इसके कान बुलंद थे। इसकी तेज निगाहें कमरे के चारों तरफ देख रही थीं। फिर उसने माइक को देखा। कुछ बदल गया। उसका जिस्म पुरसुकून हो गया। इसकी दम हल गई। इसके गिले से हल्की सी आवाज आई। माइक ने अपनी सांस रोकी। उसने महीनों से अपने कुत्ते को नहीं छुआ था। उसने इस लम्हे का ख्वाब देखा था। इधर आओ लड़के, वो सरगोशी में बोला। और आगे बढ़ा। पेटुआ खींच रहा था। से पकड़ने वाला गार्ड तकरीबन अपना तवाजुन खो बैठा। कुत्ता माइक की तरफ लपका। अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार माइक मुस्कुराया। वो अपने घुटनों के बिल जमीन पर आ गया और थोर को जोर से गले लगा लिया। कुत्ते ने इसका चेहरा चाटा। इसकी सांसें तेज और बेकायदा थीं, जैसे इसे डर हो कि माइक दोबारा चला जाएगा। ठीक है दोस्त, माइक ने सरगोशी की। मैंने भी तुम्हें याद किया। गार्ड दरवाजे के करीब खड़े थे। वो देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक अलविदा है। एक आदमी मरने के इंतजार में अपने कुत्ते को आखिरी बार देख रहा है। वो सच नहीं जानते थे। माइक ने थोर को अपने करीब रखा। उसने अपनी पेशानी कुत्ते की पेशानी से टकराई। फिर उसने कुछ सरगोशी की। एक खुफिया हुक्म, एक खास जुमला। उसका मतलब सिर्फ एक चीज थी, भाग जाओ। थोर का जिस्म साकित हो गया। इसके कान फड़फड़ाए। इसकी नज़रें माइक की नज़रों से मिल गईं। वो एक इशारे का मुंतज़िर था। माइक ने एक छोटा सा इस्बात दिया। थोर पीछे हटा। उसकी छाती तेजी से हरकत करने लगी। गार्ड्स ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन माइक ने क्या? लम्हा करीब था। हैंडलर ने पेटुआ खींचा। वक्त खत्म। माइक ने आहिस्ता से सांस छोड़ी। उसने एक आखिरी बार अपना हाथ थोर के सर पर रखा। जाओ, उसने सरगोशी की। हैंडलर कुत्ते को ले जाने के लिए मुड़ा। थोर गरवा। ये अचानक था, जोरदार, पहले से मुख्तलिफ। फिर वो हरकत में आया। जोर से खींचकर थोर ने हैंडलर के हाथों से पेटुआ छीन लिया। अफसर हैरत से पीछे हट गया। थोर घूमा और खिले दरवाजे की तरफ भागा। गार्ड्स ने चीखा, इसे रोको। अफरा तफरी मच गई।
थोर तेजी से भागा। इसके पंजे फर्श पर जोर से लगे। गार्ड्स ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। वो उनसे बचता हुआ खलाओं में मुड़ता और कूदता रहा। जेल बड़ी और मुबहम थी, लेकिन थोर को याद था। वो पहले भी यहां आ चुका था। वो जानता था कि बाहर कैसे निकलना है। अलार्म बजने लगे। अफसरान रेडियो में बोलने लगे, एक कुत्ता फरार हो गया है, दरवाजे बंद करो। थोर राहदारी के आखिर में पहुंच गया। इसके सामने एक बड़ा धाती दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। वो रुका, इसके नाखून फर्श पर रगड़ रहे थे। गार्ड्स करीब भागे, लेकिन थोर फंसा हुआ नहीं था। वो तेजी से मुड़ा और क्रेट्स के एक ढेर पर छलांग लगा दी। उसने अपनी मजबूत टांगों से धक्का दिया। वो हवा में उड़ा और इमरजेंसी एग्जिट दरवाजे से टकरा गया। दरवाज़ा खुल गया। अब वो बाहर था। जैसे ही वो उतरा तो ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। रात का आसमान इस पर फैला हुआ था, तारीक और वसी। इसके पंजे एक सेकंड के लिए जमीन से टकराए इससे पहले कि वो दोबारा भागे। मजीद चीखो पुकार। मजीद अफसरान इसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन थोर नहीं रुका। वो खाली सड़कों पर भागा। वो कारों से बचता रहा। वो गलियों में फिसल गया। उसका एक मिशन था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रे कार्टर जेल के करीब अपनी कार में बैठा था। वो सोच रहा था कि माइक की मदद कैसे की जाए जब उसने कुछ देखा। एक तेज हरकत, सुनहरी बालों की चमक। थोर। रे सीधा होकर बैठ गया। उसका दिल धड़कने लगा। कुत्ता ऐसे भाग रहा था जैसे इसकी जिंदगी का इन्हिसार इसी पर हो। रे ने जेल की तरफ देखा। लाइट्स बेताबी से चमक रही थीं। कुछ हुआ था। रे के हवास काम करने लगे। उसने कार स्टार्ट की। उसने थोर को सड़कों पर हरकत करते हुए देखा। कुत्ता नीचा, तेज और मरकूज था। रे ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। थोर सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो कहीं जा रहा था, और रे को जानने की जरूरत थी कि क्यों। थोर तारीक गलियों में भागा। इसका जिस्म नीचा था। इसकी सांस भारी थी। इसके पंजे जमीन पर जोर से लगे। वो नहीं रुका। उसने रफ्तार कम नहीं की। उसका एक मिशन था। इसके पीछे रे कार्टर ने तेजी से गाड़ी चलाई। उसने साथ देने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि थोर कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने कुत्ते पर भरोसा किया। थोर बगैर किसी वजह के नहीं भाग रहा था। उसका एक मकसद था। शहर की रोशनियां चमकें जब थोर ने तेजी से मोड़ लिए। वो तंग गलियों में भागा। वो पार्क की हुई कारों के पास से फिसल गया। रे ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा। कुछ ठीक नहीं था। ये सिर्फ फरार नहीं था, कुत्ता उसे कहीं ले जा रहा था। थोर एक पुरानी, खाली सड़क पर भागा। रे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कार को तेजी से मोड़ा। सड़क पर टायर चीखे। फिर इसने थोर को रुकते हुए देखा। कुत्ता एक जंग आलूद धाती दरवाजे के सामने खड़ा था। एक पुराना स्टोरेज यूनिट। रे ने पार्क किया और कार से बाहर निकला। थोर आगे पीछे चलने लगा। उसने अपनी नाक को दरवाजे से टकराया। उसने एक गहरी, परेशान कुन आवाज निकाली। रे ने अपने पेट में एक सख्त गिरा महसूस की। ये वो जगह है, वो सरगोशी में बोला। उसने दरवाज़ा धकेला। वो बंद था। थोर गरवा। उसने दरवाजे के नीचे वाले हिस्से को खुरचा। वो अंदर जाना चाहता था। रे पीछे हट गया। उसने दरवाजे पर जोर से लात मारी। एक बार, दो बार। लॉक टूट गया। दरवाज़ा खुल गया। धूल फिजा में भर गई। पुराने कागजात और बक्स अंदर जमा थे। रे ने अपनी टार्च निकाली। उसने कमरे में रोशनी फेर आई। फिर उसने उसे देखा। एक छोटा सा धाती बक्स। ये पुरानी पुलिस जैकेट के नीचे था। थोर उसकी तरफ भागा। उसने उसे अपनी नाक से धकेला।
रे घुटनों के बिल जमीन पर बैठ गया। उसने बक्स खोला। अंदर एक फ्लैश ड्राइव थी और खून से लिथड़ा दस्ताना। रे की सांस राख गई। दस्ताना उठाते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। वो इस दस्ताने को जानता था। ये जाए वक़ुआ से गायब होने वाला सबूत था। असल कातिल का दस्ताना। रे का दिल धड़कने लगा। उसने फ्लैश ड्राइव को पकड़ लिया। उसने अपना लैपटॉप निकाला। इसकी उंगलियां कांप रही थीं जब इसने इसे प्लग ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो नमूदार हुई। वीडियो एक सिक्योरिटी कैमरे से थी। इसमें पुलिस स्टेशन के करीब एक पार्किंग लॉट दिखाया गया था। वक्त का निशान कत्ल की रात का था। रे करीब झुका। स्क्रीन पर एक साया हरकत में आया। एक आदमी रोशनी में दाखिल हुआ। रे का पेट भर गया। चीफ डैनियल रिवर्स। वीडियो में सब कुछ दिखाया गया। रिवर्स कैप्टन हैरिस की तरफ चला गया। एक तेज हरकत। एक चाकू की चमक। हैरिस जमीन पर गिर गया। रे को मतली महसूस हुई। माइक ने सच कहा था। उसे फंसाया गया था। और अब रे के पास सबूत थे। थोर ने एक नर्म आवाज निकाली। वो महसूस कर सकता था कि ये लम्हा कितना संजीदा है। रे का जहन दौड़ने लगा। माइक की सजाए मौत बहुत करीब थी। कोई वक्त नहीं था। रे ने फ्लैश ड्राइव पकड़ी। उसने दस्ताना पकड़ा। उसने उन्हें अपनी जेब में ठूंस दिया। हमें जाना होगा, इसने कहा। थोर एक बार भौनिक्का। रे अपनी कार की तरफ भागा। थोर ने इसकी पैरवी की। उसने सबूत सीट पर फेंक दिया। फिर उसने गैस पैडल पर जोर से पाँव मारा और तेजी से भाग गया। शहर उसके पास से तेजी से गुजरा। लेकिन इसका जहन वाज़े था। उसे सजाए मौत रोकनी थी। रे के फोन की घंटी बजी। उसने बगैर देखे इसे उठाया। कार्टर, एक धीमी आवाज ने कहा। ये रिवर्स था। रे ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। मुड़ जाओ, रिवर्स ने कहा। इसकी आवाज पुरसुकून थी। बहुत पुरसुकून। घर जाओ, कार्टर। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। रे का जबड़ा सख्त हो गया। तुमने एक बेगुनाह आदमी को फंसाया। खामोशी। फिर एक खामोश हंसी। तुम कुछ साबित नहीं कर सकते, रिवर्स ने कहा। अगर तुम कोशिश भी करो तो तुम वक्त पर नहीं पहुंच पाओगे। गुस्से से रे की छाती जलने लगी। मैं तुम्हारी बात सुनकर थक गया हूं, उसने सख्ती से कहा। उसने कॉल खत्म कर दी। उसने गैस पैडल पर और जोर से पाँव मारा। फिर उसने उसे देखा। पुलिस का रोड ब्लॉक। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रे ने स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो एक तरफ की गिल्ली में मुड़ गया। वो उसकी बजाय अदालत की तरफ तेजी से भागा। माइक के पास सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। थोर ने एक तेज आवाज निकाली। वो चाहता था कि रे और तेजी से जाए। रे का दिल धड़कने लगा। अभी भी वक्त था। लेकिन बमुश्किल। और वो अपने दोस्त को एक ऐसे जुर्म की पादाश में मरने नहीं देगा जो उसने नहीं किया। माइक की कलाइयों पर ठंडे धाती हथकड़ियां किसी हुई थीं। गार्ड उसे लंबी, खामोश राहदारी से नीचे ले गए। इसके कदम मुस्तकिल थे। उसका दिल पुरसुकून था। वो इसके लिए तैयार था जो आने वाला था। सजाए मौत के कमरे के बड़े दरवाजे आगे थे। अंदर की रोशन रोशनियों ने फर्श पर लंबे साए बनाए। वक्त आहिस्ता महसूस हो रहा था, जैसे हर चीज गाड़ी हुआ से गुजर रही हो। एक गार्ड ने आहिस्ता से बात की। कोई आखिरी अल्फाज। माइक ने सर हिलाया। वो डरा हुआ नहीं था। उसने इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी थी। उसे अपना काम पसंद था। उसे अपने कुत्ते से मोहब्बत थी। उसने लोगों की हिफाजत की थी। अगर ये अंजाम था तो वो इससे नहीं लड़ेगा। लेकिन दिल में, गहराई में, इसके दिल में, इसे अभी भी उम्मीद थी। थोर ने इसके हुक्म को समझ लिया था। रे ने इसकी पैरवी की थी।
اور اگر دنیا میں ابھی بھی انصاف باقی تھا تو سچ وقت پر آئے گا۔ دیوار پر لگی گھڑی زور سے ٹک ٹک کر رہی تھی۔ کمرہ خاموش تھا، صرف دل کی دھڑکن کی ہلکی بیپ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ مائک نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سرگوشی کی، شاباش لڑکے۔ تھور وہاں باہر تھا، وہ اسے ناکام نہیں ہونے دے گا۔ شہر بھر میں رے کارٹر کی کار تیزی سے جیل کے دروازوں کے سامنے رک گئی۔ ٹائر چیخے، وہ کود کر باہر نکلا، ایک ہاتھ میں فلیش ڈرائیو اور دوسرے میں خونی دستانہ پکڑے ہوئے تھا۔ تھور کار سے چھلانگ لگا کر آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر سیکنڈ اہم ہے۔ داخلے پر موجود گارڈز آگے بڑھے۔ وہیں رکو، ان میں سے ایک نے چیخا۔ میرے پاس ثبوت ہے، رے نے چیخ کر کہا۔ مائک گریسن بے گناہ ہے، آپ کو مجھے اندر جانے دینا چاہیے۔ وارڈن، تھکی ہوئی آنکھوں والا ایک بوڑھا آدمی، باہر نکلا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، لیکن رے کی آواز میں کسی چیز نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ یہ بہتر ہو کہ یہ اچھا ہو، وارڈن نے کہا۔ رے نے فلیش ڈرائیو اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اسے چلائیں ابھی۔ وارڈن نے رے کے چہرے پر دیکھا۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ اندر بھاگے۔ سیکیورٹی روم خاموش تھا۔ وارڈن نے فلیش ڈرائیو کو کمپیوٹر میں ڈالا۔ ایک ویڈیو چلی۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اسکرین پر چیف ڈینیل ریورز پارکنگ لاٹ میں چلتے ہوئے۔ وہ سائے میں حرکت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاقو چمکا۔ کیپٹن ہیرس گر گئے۔ پھر وہ حصہ جو کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حصہ جو چھپایا گیا تھا۔ ریورز نے چاقو کو صاف کیا۔ اس نے دستانے نکالے۔ اس نے مائک کی انگلیوں کے نشان بندوق پر لگائے۔ پھر وہ چلا گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شروع سے ہی موجود تھا۔ وارڈن کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ رے نے میز پر اپنا ہاتھ مارا۔ گورنر کو کال کرے ابھی۔ سزائے موت کے کمرے کے اندر جیل ریڈیو پر اچانک ایک آواز آئی۔ سزائے موت روک دو، سزائے موت روک دو۔ گارڈز جم گئے۔ مائک نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے واپس اس کے سیل میں لے جاؤ، وارڈن کی آواز نے کہا۔ مائک کی کلائیوں پر لگی ہتھکڑیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اسے روکے ہوئے تھا۔ یہ ختم ہو گیا تھا۔ گارڈ اسے واپس لمبی راہداری سے نیچے لے گئے۔ اس کی چھاتی پر بھاری وزن غائب ہو گیا تھا۔ موت کا خوف غائب ہو گیا تھا۔ گارڈ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں صدمے سے پھیلی ہوئی تھیں۔ جب مائک اپنے سیل میں پہنچا تو سچائی پھیل چکی تھی۔ اصل قاتل کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ کیس دوبارہ کھل گیا تھا۔ مہینوں میں پہلی بار لوگوں نے سچائی دیکھی۔ مائک بے گناہ تھا۔ جب رے جیل کے دروازوں سے گزرا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ تھور اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ مائک سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے دھات کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے تھور کو دیکھا۔ اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ گارڈ نے سیل کا دروازہ کھول دیا۔ تھور اندر بھاگا۔ مائک گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ تھور جوش و خروش سے لرز اٹھا۔ تھور نے اس کا چہرہ چاٹا۔ وہ چلایا۔ اس نے اپنا سر مائک کی چھاتی سے لگا دیا۔ مائک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے انہیں گرنے دیا۔ اس نے اپنے بازو تھور کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ نرم بالوں میں چھپا لیا اور سرگوشی کی، شاباش لڑکے، تم نے میری جان بچائی۔